Hi, good evening, all of you. I hope you guys are doing really well. Can you guys see me? Can you guys hear me? Welcome to very own platform of yours that is An Academy 11th and 12th. Are you ready to ace up your school with Unacademy Plus? Then do join me on Unacademy Plus using my referral code that is KRITS in capital letters to avail a 10% discount on your Unacademy subscription. So let's get started. What are you waiting for? Shall we move on? Yes. Can you guys see me? Can you guys hear me? Am I audible? Am I visible to everyone? I welcome dear learners. This is your English educator, Dr. Kritika, welcomes you all to your very own platform that is An Academy 11th and 12th. If you are new to our channel, do not forget to subscribe, hit the bell icon to get the further notifications of the channel. So let's get started, Bachabadi. I hope you guys are aware about this Unacademy Ask a Doubt feature, right? This is a very, very superb feature of Unacademy. For this, you have to download Unacademy's learning app from your Play Store and your App Store, right? So you have to go to your Play Stores and download Unacademy's learning app, and you can ask unlimited doubts. And at the end of the doubts, bacha, you will be getting the video solution, like high quality video solutions recorded in English as well as Hindi languages. Whichever language is suitable for you, you can go for it. Along with that, you can ask doubt at any time. That's the wonderful feature, because her time teacher is not available for you, bacha. So what you can do, you can make use of this feature, and you can study in a very, very appropriate manner, right? So you can ask your doubt at any time of the day. You can receive exact matches for your question. Whatever question you will ask, you will get an exact match of that question. Okay, and you can obtain an instant and accurate solutions to lakhs and lakhs of questions. And along with that, you can also get assistant with your homework. तो मतलब और क्या चाहिए, है ना? तो basically इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बच्चा. You have to go to Unacademy's learning app. You have to click on ask a doubt feature, if you can see in this particular picture. Then you have to select take a picture, or you can choose from your gallery also. Then after uploading the picture, what you have to do, you have to just highlight, just select the picture of your question. Okay, then you have to crop it, and you have to highlight one specific question. Along with that, you have to choose your subject, whether it's from mathematics, physics, chemistry, and else. And you have to sit and chillax, because our team, the educator team, the special educators will contact you, right? Doubt clearing team will contact you and will give you a high end video solution, right? तो गाइस, अभी कितनी बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब हम अपनी लैपटॉप मांगते हैं, जब अपना फोन मांगते हैं, तो घर पे बहुत सारी डांट पड़ती है ना? तो आपके पास मौका है अनअकैडमी एमर्ज के थ्रू अपना वेरी ओन लैपटॉप लेने का, अपना वेरी ओन आईफोन खरीदने का, आईपैड खरीदने का, और मेनी मेनी अदर गिफ्ट्स. ओके, so ये क्या है बच्चा? It is India's largest aptitude test, which is for the classes 6 to 12. Anybody can take part. Okay, this is the aptitude test, और इसमें आपका aptitude को चेक करा जाएगा बेटा. 6 से लेकर 12 तक कोई भी क्लासेस, कोई भी क्लास का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, राइट? सो टेस्ट की डेट क्या है बच्चा? 20th of June 12 बजे, है ना? 20th of June दोपहर के 12 बजे आपको एकदम तैयार रहना है इस मजेदार टेस्ट के लिए. इस टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा? इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे बेटा, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 30, एंड यू विल हैव टू कंप्लीट द चैलेंज इन 60 minutes. ओके, एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड. All is required is just enroll. You have to just enroll in this test. And how you're going to enroll? By using this referral code KRITS. You can enroll in Unacademy Emerge. Absolutely no preparation is required, and you have a chance to win prizes worth 5 crore rupees. 5 crore rupees के आपको प्राइजेस मिल सकते हैं. आपके पास चांस है प्लस की स्कॉलरशिप पाने का, मेगा प्राइजेस जीतने का, जिसका नाम है मैकबुक, आईफोन, आईपैड्स, exciting, wonderful goodies, certificates, trophies, and much more, worth rupees 5 crore, as I told you. So अब no more डांट खाना, no more पछताना, only और only क्या करना? Unacademy अपनाना, right? So are you ready?
अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन आपको देता है घर पे पढ़ने का मौका। अभी आपको पता है कोविड की वजह से इट इज नॉट सेफ टू गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिट एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस एंड यू कैन अटेन योर एजुकेशन विद टॉप मोस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं अकेडमी में। तो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी चलो प्लस पे और अपना पढ़ते हैं आराम से, राइट। यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। हैव यू सीन नेटफ्लिक्स? सबने नेटफ्लिक्स देखा है, अमेजॉन प्राइम देखा है? क्या होता है जब आप अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके पास पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। आपको जोन से भी जानरा की मूवी देखनी है, आपको जोन से भी मूवी देखनी है, कोई भी आपको वेब सीरीज देखनी है, यू कैन गो फॉर इट। सिमिलरली अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप एकदम खुले, एकदम आजाद पंछी की तरह हो जाते हो। whichever teacher you want to choose, whoever you want to study from, whichever batch you want to enroll in, you are free to do that, right? रेगुलर आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं हर तीसरी क्लास के बाद। जो चौथी क्लास होती है इट इज ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशन। तो एकदम एक भी चक्का चक करके पढ़ाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका, राइट। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिलता है आपको, रेगुलर मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिल जाती है बच्चा। Nobody plans to fail, but we all fail to plan. तो आप लोग चिंता मत करो, we all have planned for you guys, right? You just have to come, enroll, and you have to conquer this battle. Are you ready? Yes, because आप लोग को स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है पीडीएफ के फॉर्म में। यू हैव प्रैक्टिस टेस्ट, यू विल हैव लाइव टेस्ट सीरीज, एंड यू कैन एनरोल इन मेनी ऑफ द बैच कोर्सेज एज वेल। अगर आप चाहते हो ना आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, राइट। तो अभी पढ़ने वाले हैं बच्चे बाड़ी, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांस का इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर विस्तास। दिस इज फॉर क्लास 12, okay? So class 12 students, are you ready for this lesson? Just show me some messages in the chat box so that I know you guys can see me, you guys can hear me. Am I audible to you? Am I visible? Shall we start with the chapter? Yes, of course. So let us quickly start with the chapter, bata. This is the introduction of the very important chapter from your literature, class 12, Vista's book, that is Ivan's Tries in O Level, which is written by Colin Dexter, Okay, so let's get started, bacha. Introduction. This story is about Evans. Now, who was Evans? Evans was a kleptomaniac. So you got a new word over here. The word is kleptomaniac. Now, what does it mean? Kleptomaniac means a person who is habitual of doing thievery, robbery, है ना, जिसको चोरी करने की बीमारी होती है। मैम चोरी करने की बीमारी? Yes. A person who steals, who regularly steals, his habitual of stealing is called as kleptomaniac. तो जो इस चैप्टर में इवांस था ना, है ना, जेम्स रॉड्रिक इवांस। इवांस का पूरा नाम क्या था? जेम्स रॉड्रिक इवांस। ही वाज अ क्लेप्टोमेनियक, राइट। तो बहुत ही एकदम चालाक सा प्रिजनर था इवांस, है ना, जो हमेशा प्लान बनाता रहता था कि यार मैं कैसे भागूं जेल से। ही ऑलवेज वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द jail, escape from the prison, okay? So he feel like learning German language. उसका मन किया एकदम से, already वो 3 टाइम तो प्रिजन से भाग ही चुका था। 4th टाइम भी वो पूरी की पूरी तैयारी करके आया था बेटा कि मुझे 4th टाइम भी प्रिजन से भागना है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन यूज द चैट बॉक्स एंड यू कैन यूज द लाइव चैट एंड यू कैन लेट मी नो, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट, राइट। तो बेटा अभी तक हमने क्या देखा? इवांस जो था वो इज अ क्लेप्टोमेनियक एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय कोलिन डेक्स्टर। ही वाज इन अ हैबिट ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन एंड एवरी टाइम वो एस्केप करने के प्लान्स बनाता रहता था। I would also like to tell you that Evans was having a very friendly nature. Every now and then he used to make friends and he has everyone out there who was Evans' friend. So everybody helped him out in just getting out of the prison every time. Right? So let's start the next paragraph. Evans who make a plan to escape from the prison on the day of German examination. German level का O level का एग्जाम वो दे रहा था बच्चा, and he was thinking कि यार O level का एग्जाम तो एक बहाना है, मुझे तो जेल से बाहर जाना है, right?
तो ओ लेवल का एग्जाम तो एक बहाना है, असली मकसद तो मेरा जेल से बाहर जाना है, राइट? तो आर जेल अथॉरिटीज, एवरीबडी वाज कंफ्यूज दैट यार इवांस को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि 3 बार तो वो ऑलरेडी भाग चुका है, 3 times, so he has already escaped the prison, he has broke the prison, इसीलिए उसका नाम पड़ चुका था इवांस द ब्रेक, इसीलिए उसका नाम पड़ चुका था इवांस द ब्रेक। सारी की सारी जेल अथॉरिटीज उसको इवांस द ब्रेक कह के बुलाते थे, राइट? इवांस मेक अ प्लान फॉर एस्केप फ्रॉम प्रिजन ऑन द डे ऑफ हिज जर्मन लेवल एग्जामिनेशन, उसने जर्मन लैंग्वेज के लिए पढ़ने के लिए शुरू किया, और उसने बोला कि प्लीज मुझे ना जर्मन लैंग्वेज सीखनी, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं प्रिजन में हूँ ना तब तक मैं अपनी कुछ क्वालिफिकेशन को एकदम चकाचक कर लूं, राइट? और जेल अथॉरिटीज जो थे वो मान गए इस बात के लिए कि चलो ठीक है तुम एग्जाम दो अपना। तो ओ लेवल एग्जामिनेशन क्या होता है बेटा? इट्स ओ लेवल एग्जामिनेशन इज अ जर्मन प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपको देखते हैं कि आपको कितने अच्छे से जर्मन आती है। जैसे यू माइट हैव हर्ड अबाउट आईएलटीएस एग्जामिनेशन, यू माइट हैव हर्ड अबाउट आईएलटीएस एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है बच्चा, आपको बाहर फॉरेन कंट्रीज जाने के लिए आपको एग्जामिनेशन लेना होता है, एंड यू हैव टू अंडरगो दिस एग्जामिनेशन, दिस विल टेस्ट यू अबाउट द प्रोफिशिएंसी अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? सेम लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे आईएलटीएस का होता है, वैसे ही जर्मन लैंग्वेज के लिए ओ लेवल का एग्जाम होता है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। So the jail authorities on the other hand are ready to cover up any sort of risk. Will he able to succeed this time in his escape? Let's see, let's read the chapter and let's see, will Evans be able to escape the 4th time also? So beta, the story starts with a telephonic conversation between the governor and the examination board of secretary, right? दो लोगों के बीच में ट्रिंग 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 हेलो हेलो हो रहा था। There was a telephonic conversation going on between the governor and the examination board secretary. The prison authorities want to conduct an O-level examination in German language for prisoner named Ivan. Evans के लिए सबने डिसाइड किया कि यार जर्मन लैंग्वेज का एग्जाम करवा देते हैं, बट उनके मन में थोड़ी सी हिचक थी, हिचक बोले तो हेजिटेशन, उनके मन में थोड़ी सी हेजिटेशन थी बेटा कि यार हम करें तो क्या करें, अगर फिर से ये जेल से भाग गया तो बड़ी बदनामी हो चुकी है ना, अभी तक तो हमारी बदनामी हो ही गई है और अभी वापस से जो बची कुची नाक है ना वो भी कट जाएगी, है ना? तो he will put us to shame, he will put us to shame. Now let's see, is that clear to everyone? Shall we move ahead? Yeah. So the secretary asked about the venue of the examination and also about the invigilator for it. Now secretary was worried about Ivan. He asked कि यार एग्जाम कराएंगे कहाँ पर, इतना प्रिजनर है तुम्हारा, कहीं भाग जाएगा कुछ हो जाएगा तो एग्जाम कहाँ कराना है, और इन्विजिलेटर कौन होगा, इतने खतरनाक सा कैदी के साथ इन्विजिलेशन कौन करेगा? What is invigilation? You might have seen whenever you are taking your exam, there are teachers who used to keep on roaming here and then, चुप हो जाओ बात मत करो, एंड खुद चुप 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 ऐसे बातें करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, मजे करते रहते हैं, समोसा खाते रहते हैं। हैव यू सीन, राइट? सो इनविजिलेटर वही होते हैं बच्चा जो आपके एग्जाम में इन्विजिलेशन की ड्यूटी करते हैं, लाइक अभी आप में साइन करते हैं, अच्छा सही लिखा है, गलत कर दिया, ओ गलत कर दिया, तो वो वाले जो टीचर्स होते हैं ना जो आपके एग्जाम में ड्यूटीज करते हैं उनको बोलते हैं इनविजिलेटर। जो आपकी कॉपी चेक करता है उसको चेकर बोलते हैं, या फिर चेकर बोलते हैं उसको, और इसको बोलते हैं इनविजिलेटर। तो कंफ्यूज मत होना, ओके? इनविजिलेटर, चेकर। The governor replies that exam can be conducted in Ivan's cell. गवर्नर बोला मैं इसको कैदी को बाहर नहीं भेजूंगा, एग्जाम तो यहीं पर होगा इसी के प्रिजन में, समझ रहे हो? तो कंडक्टेड इन इवान सेल। अब वैसे सेल का मतलब तो रूम होता है, बट इधर सेल का मतलब क्या है बच्चा? प्रिजन, है ना? प्रिजन में होगा, उसी के जेल में होगा। एंड द चर्चमैन विल बी अपॉइंटेड एज द इन्विजिलेटर फॉर द एग्जाम। नाउ चर्चमैन क्या होता है? पर्सन, अ पर्सन हु इज देयर इन चर्च, है ना? जैसे आपके फादर्स होते हैं चर्च में। अब यहाँ पर कौन सा चर्च था? सेंट मैरीज मैग नाम का एक चर्च था बच्चा, जहाँ के जो चर्चमैन थे उनको बुलाया गया कि आओ और इवांस के एग्जाम में तुम ड्यूटी करो, ठीक है? उसको अपॉइंट कर लिया गया था बेटा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैकलेरी। क्या नाम था उसका? मैकलेरी नाम था उसका, यस, स्टुअर्ट मैकलेरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? शैल वी मूव अहेड? जल्दी से मुझे रिवाइज कराओ, इवांस का पूरा नाम क्या था? राइट इन द चैट बॉक्स, everyone will tell me this answer. Okay, what was the real name of Ivan? What was the real name of McClary? Okay, now tell me which church we are talking about. Third question, come on quickly write down. Third question is which church we are talking about? Who was McClary, who was Evans, and Evans का दूसरा नाम क्या था? Fourth question, come on everyone, let's see कौन देता है सबसे जल्दी आंसर. Come on everyone,
Yes, come on, everyone. Good, good, good. Go for it. Yeah. So they both then end their conversation by deciding on how and when the exam will be conducted. है ना? दोनों ने डिसाइड किया कि यार कब कराएं इसका एग्जाम, इतना शातिर प्रिजनर है ये, कब कराएंगे इसका एग्जाम, आखिर कब? तो सीनियर प्रिजन ऑफिसर्स जो थे बेटा, सीनियर प्रिजन ऑफिसर जो थे जिसका नाम था जैक्सन, उसने इवांस के सेल में विजिट करी, ऐसे ही गए अब देखने की क्या हो रहा है, लेट्स सी क्या हो रहा है ना? इंस्पेक्शन करने गया, फ्रिस्किंग करने गया, कुछ ना कुछ तलाशी ली उसने, तलाशी लेने को बोलते हैं फ्रिस्किंग, खंगालना। लाइक इसमें क्या है, लाइक मैं सपोज देख रही हूँ इसमें क्या है, ओके इसमें तो कुछ नहीं मिला मुझे, इधर देखती हूँ इधर क्या है, अच्छा कुछ नहीं मिला, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिस्किंग, किसी के कमरे में जाके तलाशी वलाशी लेना, उसको बोलते हैं फ्रिस्किंग। तो ऐसा सीनियर ऑफिसर, बेटा दो पुलिस ऑफिसर्स थे पूरे चैप्टर में, एक था सीनियर पुलिस ऑफिसर और दूसरा था जूनियर पुलिस ऑफिसर। सीनियर पुलिस ऑफिसर का नाम था जैक्सन और जूनियर पुलिस ऑफिसर का नाम था स्टीफन, उल्टा था, जूनियर का नाम, सीनियर का नाम था जैक्सन और जूनियर का नाम था स्टीफन, SJJS ऐसे करके किसी को भी याद कर लो, याद हो जाएगा, राइट? तो स्टीफन एंड जैक्सन दोनों के दोनों निकम्मे थे, कुछ भी काम ना आया, और इन लोगों की बेवकूफी की वजह से बेटा फोर्थ टाइम आल्सो इवान escaped from the chapter, है ना, from the prison, we will read in the chapter, right? So senior prison officer ने बोला, जैक्सन गया बेटा इवांस के पास, उसने बोला मुझे दिखाओ जरा कुछ, तुमने वेपन तो नहीं छुपा के रखा? वेपन क्या होता है बेटा? कोई भी हथियार, है ना? उन्होंने कहा हैंड्स अप, हाथ चलेंगे ना हथियार चलेंगे, यू विल नाइदर मूव योर हैंड्स नोर वेपन। उसने कहा सीधा खड़े हो जाओ, मुझे तलाशी लेने दो तुम्हारे कमरे की, कहीं तुम जो बेचारा एग्जामिनर आ रहा है, इन्विजिलेटर आ रहा है, उसको भी तुम मार दोगे, है ना? और तुम 3 बार तो ऑलरेडी भाग चुके हो जेल से, तुम्हारा रिकॉर्ड तो वैसे ही खराब है, राइट? So they were going through this checking because Evans had successfully escaped from prison earlier, and this episode gave him the name of Evans the Break, है ना? ब्रेक बोले तो प्रिजन तोड़ के वो ऑलरेडी 3 बार भाग चुका था, he was a kind of a prison breaker, he was a kind of a person who always breaks prison, right? So now let's see the other portion. The governor was not ready to take any risk with this ad. This could bring the bad name to him. अब गवर्नर ने कहा यार मैं इस चीज का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, बिकॉज मेरी नाक जो बची हुई ना वो भी कट जाएगी, बची कुची जो मेरी नाक है ना वो भी कट जाएगी, यार मैं कोई भी रिस्क नहीं लूंगा, मैं इस केस को पर्सनली ऑब्जर्व करूंगा, मैं इस केस को अपने अपने एंड से ऑब्जर्व करूंगा, अपने पूरे तरीके से देखूंगा कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, राइट? So let us see now what happened. Jackson and Stephen, बेटा who are Jackson and Stephen? जल्दी से लाइव चैट में बताओ मुझे, कौन बताएगा? जैक्सन और स्टीफन कौन कौन से थे? ओल्ड हमारा जो था हमारा ओल्ड प्रिजन ऑफिसर कौन था, एंड साथ में मेरे को बताओ जो हमारा न्यू प्रिजन ऑफिसर्स थे वो कौन थे, जल्दी से बताओ मुझे, ओल्ड प्रिजन ऑफिसर कौन था सीनियर वाला, और साथ में न्यू जो हमारा जूनियर प्रिजन ऑफिसर्स था वो कौन था, एसपीओ एंड जेपीयू कौन कौन थे, जल्दी बताओ मुझे इसमें से, एवरीवन क्विकली क्विकली आंसर। Yes, very nice, very good. Okay, great, great, great. Yes, Jackson was the senior prison officer and Stephen was the newly appointed prison officer. Right? He was a junior prison officer. And उन्होंने अच्छी तरीके से सेल की तलाशी ली, पर उनके कुछ भी हाथ ना आया, कुछ भी समझ ना आया और कुछ भी हाथ ना आया, right? They had taken away his nails, scissors. वो आराम से अपना फाइलिंग कर रहा था नेल्स की, उसने कहा चल इधर ला सीजर दे मुझे फटाफट, कहीं तो इसको लेके you might have used, you could have used this in as a weapon, right? You could have used this as a weapon, तो जल्दी से इसको ले लिया जाए, है ना? तो जैक्सन ने ऑर्डर किया स्टीफन से कि भाई ये आराम से शेव वेव कर ले, फिर इसका रेजर वाला ब्लेड भी ले लेना। व्हाट इज रेजर ब्लेड? यू माइट हैव सीन, जब आप शेविंग करते हो आपने मूवीज में देखा होगा, दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ ब्लेड, है ना, उससे वो शेविंग कर देते, तो उसने बोला कि यार इसका रेजर ब्लेड भी ले लो, क्योंकि ही कैन यूज दिस एज अ वेपन एंड ही माइट एस्केप फ्रॉम द प्रिजन वन मोर टाइम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है? Shall we move on? Yes? चलो great. Jackson ordered Evans to take off his hat. उसने कहा चल बेटा तूने बहुत टोपी पहनाई बच्चों को, तूने सबको बहुत टोपी पहनाई, अब तेरी बारी आई है, रिमूव दिस टोपा ऑफ योर्स, है ना? उसके सर पे गंदा सा रेड कलर का डॉट डॉट वाला कैप था, हैट था, उसने कहा चल टोपी उतार बेटा, तूने बहुत टोपी पहना ली, नाउ इट्स टर्न टू रिमूव योर हैट, टेक ऑफ योर हैट। उसने कहा नहीं प्लीज, हे माँ माता जी डोंट डू इट, अगर तुमने मेरा टोपी उतारा तो भाई राज खुल जाएगा। असली में तो उसने सच्चाई
वाइफ बोल दी थी कि अगर टोपी उतारी तो राज खुल जाएगा। व्हाट वाज द राज, व्हाट वाज द मिस्ट्री बिहाइंड टोपी, है ना। टोपी पहन पहन के बेटा वो सबको टोपी पहना रहा था। व्हाट वाज हैपेंड एक्चुअली, ही गॉट टू नो दैट मैक्लेरी अंकल आएंगे, उनको पता लग गया था कि मैक्लेरी अंकल आएंगे उनका एग्जाम लेने। उसने इवांस के बड़े ही सुंदर घने काले बाल थे बेटा, उसने अपने बालों को चॉप चॉप कर लिया था एंड ही वॉज इम्पर्सनेटिंग मैक्लेरी। अब एक नया वर्ड मिल गया, मैम आप कितने वर्ड दोगे, कोई बात नहीं समझा रही हूँ। इम्पर्सनेटिंग मैक्लेरी मतलब किसी की कॉपी करना, किसी की नकल करना, है ना। तो ही वॉज इम्पर्सनेटिंग होम मैक्लेरी, वो मैक्लेरी जैसा दिखने की कोशिश कर रहा था, वो मैक्लेरी जैसा दिखने की कोशिश कर रहा था एंड उसने दैट वेरी डे ही अपने बाल चॉप चॉप किए थे। तो अगर वो टोपी उतारता तो ये राज सबको पता चल जाता कि मैक्लेरी की तरह उसने भी अपने बाल छोटे कर लिए। अब मजे की बात पता है आपको क्या पता लगेगी कि मैक्लेरी जो था ना, वो रियल मैक्लेरी तो कभी भी प्रिजन तक पहुंचा ही नहीं। अभी देखते हैं, जस्ट इसके बाद समझ में आएगा आपको, राइट। इवांस रिक्वेस्टेड कि प्लीज मुझे मेरी टोपी दे दो, दिस इज माय लकी चार्म, दिस इज माय लकी हैट, और अगर मैंने एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, अगर मैं उसको उतार दूंगा। कई लोग बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन होते हैं ना कि यार ये पहन लो, वो पहन लो, जय माता दी, ये वो, है ना, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसे कई लोग सोचते हैं। बट बेटा देर इज नो सब्सटीट्यूशन फॉर हार्ड वर्क, है ना। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, है ना, कभी भी देर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, है ना। भले ही आपको टेम्परेरी सक्सेस मिल सकता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहते हो, है ना, अगर आप अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहते हो, आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स might be having their goal of cracking their NEET examination, of cracking their IIT examination, for cracking their NDA examination, for cracking their UPSC examination। सबका गोल होगा ना लाइफ में, कुछ ना कुछ एम तो होगा। तो ये आप क्रैक कर सकते हो कैसे, अनअकैडमी के साथ, बिकॉज यहाँ पर आपको वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाते हैं, राइट। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाते हैं जो आपको आपका ड्रीम पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट। तो अगर अभी किसी को अगर लग रहा है कि यार थोड़ा जुनून आया है पढ़ने का, बोर्ड्स कैंसिल हो गए, इट्स ओके बेटा, यू हैव टू मूव अहेड एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल। सबकी लाइफ में दो गोल होते हैं ना, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, होता है कि नहीं होता। तो यार हमें ना अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल को कर ले इट्स ओके, बट लॉन्ग टर्म गोल को ना थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े हमें वैसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो आज हमें समझ नहीं आते कि हम क्या कर रहे हैं, बट एंड में जाके समझ में आता है कि यार जो किया था अच्छा किया था, एंड उसी वजह से वी आर हियर, राइट, टुडे वी आर हियर। ऑलराइट, so let us move on to the next one, let us move on to the next part. So all sorts of arrangements were made, all sorts of arrangements were made, what was happening actually, उसने मना कर दिया कि मैं टोपी नहीं उतारने वाला, ठीक है, मैं टोपी नहीं उतारने वाला, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो सारे के सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे, बट टू कीप अ चेक ऑन इवांस इवन माइक्रोफोन वाज प्लेस्ड इन द सेल, उसके सेल में माइक्रोफोन तक लगा दिया गया था, उसके सेल को बक कर दिया गया था कि जो भी वो बात करे हमें तो सुनाई में आएगा। एंड इतने महान पुलिस ऑफिसर्स थे बेटा वो लोग, उसने जाके बता भी दिया, पता है इवांस, तुम्हारे तो सेल में ना हमने माइक लगा दिया है, और जब भी तुम कुछ बोलोगे हमें तो समझ में आएगा, हमें तो सुनाई में आएगा, ऐसे करके बता दिया उसने, है ना। अब इवांस तो वेरी शार्प, ही वाज वेरी क्विक, ही वाज वेरी अलर्ट, उसने कहा अच्छा बच्चा तुमने मेरे माइक लगा दिया, अब तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, है ना। अब तो उसको एक इंट्यूशन मिल गया बेटा, उसको तो एक रास्ता मिल गया ना कि यार मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि जिसकी वजह से मैं पकड़ा जाऊं और ये लोग मुझे वापस से पकड़ लें, है ना, क्योंकि मेरा तो एम क्या था, मेरा तो गेम क्या था, मुझे तो भागना है यहाँ से। ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन मैक्लेरी द चर्चमैन रीच्ड द प्रिजन एंड वाज असिस्टेड बाय स्टीफन टू द सेल। स्टीफन ने कहा अरे वाह, मैं तो अभी नया नया आया, मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दे दिया इन लोगों ने, वाह। और यही गलती थी बेटा, यही गलती थी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बेटा कि इवांस ऑलरेडी मैक्लेरी के बारे में पता कर चुका था। अब आपको हैरानी नहीं हो रही कि इवांस तो जेल में है, बाहर से मैक्लेरी आ रहा है, तो उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, हैरानी हो रही है। तो बेटा इन प्रिजन वालों ने क्या करा था, प्रिजन वालों ने उसके लिए एक ट्यूशन लगवाई थी बेटा, एक ट्यूटर लगवाया था, जैसे मैं आपकी ट्यूटर हूँ ना, मैं आपकी एजुकेटर हूँ, वैसे उसके लिए एक जर्मन का एजुकेटर बुलाया गया था। कहाँ से, टेक्निकल कॉलेज से एक जर्मन का एजुकेटर बुलाया गया उसके लिए, और उसको 6 महीने से 6 मंथ से वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, 6 मंथ से वो लोग पढ़ाई करवा रहे थे कि शायद ये ऐसा बच्चा
एग्जाम में पास हो जाए, राइट। तो बेटा आउटर वर्ल्ड में और इनर वर्ल्ड में, क्योंकि प्रिजन में इवांस था, बाहर था उसका टीचर और बीच में था भागने का प्लान। तो ये भागने का प्लान आखिर पूरा कैसे हुआ? उसके टीचर ने बाहर से एफर्ट्स दिए, इवांस ने सारी बातें अंदर की बताई और मिलजुल के उन्होंने प्लानिंग करी कि कैसे मुझे एस्केप करना है, राइट। सो इवांस ट्राइज इन ओ लेवल एंड साथ साथ में ही ट्राइज to make a plan how to escape the fourth time also from the prison। और prison का नाम क्या था? ऑक्सफोर्ड prison। prison का नाम क्या था? the name of the prison was ऑक्सफोर्ड prison, ठीक है। और उसको ऑक्सफोर्ड prison के डी विंग में रखा गया था, ठीक है। इवांस को ऑक्सफोर्ड prison के डी विंग में रखा गया था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? right? So governor was informed about the exam was about to begin and that the cell did not have any weapon। बता दिया गया कि सेल में कोई वेपन नहीं है ना, तुम आराम से एग्जाम दे सकते हो। The governor ordered the officers to check the churchmen so that Evans may not use the belonging of McCleary as a weapon। गवर्नर ने ऑर्डर किया, बेटा गवर्नर थोड़ा समझदार आदमी था एंड इसने बेटा जर्मन लैंग्वेज स्टैंडर्ड 6 तक पढ़ी थी अपने एग्जाम में, अपने स्कूल में इसने 6th स्टैंडर्ड तक जर्मन लैंग्वेज पढ़ी, ठीक है। अब उसने कहा इवांस की तो तुमने तलाशी ले ली, चलो चर्चमैन की भी। चर्चमैन कौन था बेटा? मैक्लेरी, जो उसका एग्जाम लेने के लिए आया था। उसने बोला कि मैक्लेरी की भी तलाशी लो, कहीं इसके पास तो कोई वेपन्स नहीं है। जब मैक्लेरी की तलाशी ली तो दो बड़ी अजीब सी चीजें मिली उसके बैग में से, है ना, उसके सूटकेस में से दो अजीब सी चीजें मिली। एक था पेपर नाइफ, तो पेपर नाइफ तो उनसे ले लिया। पेपर नाइफ क्या होता है बेटा? एक ब्लंट नाइफ होती है जिससे आप पेपर को ओपन करने के लिए उसका एनवेलप को खोलते हो, राइट। सो पेपर नाइफ तो ले ली गई उससे और बोला कि शायद ये यूज कर ले। दूसरा चीज उसको एबनॉर्मल चीज क्या मिली? एक ऐसे सेमी फिल्ड सी ना, उसको ऐसे करके एक ट्यूब मिली, है ना, एक सेमी फिल्ड सी ऐसे सेमी सर्कल वाली ट्यूब मिली उसको, जिसमें जो हाफ फिल्ड थी, है ना, सेमी फिल्ड मतलब आधी फिल्ड थी। सेमी फिल्ड ट्यूब मिली उसको, एक ऐसे करके ट्यूब थी और वो आधी फिल थी बेटा। उसमें क्या था? उसमें पिग का ब्लड था। उसमें क्या था? पिग का ब्लड था, जो कि वो यूज करने वाले थे नकली खून बना के पूरा का पूरा प्लान रच के भागने का, राइट। सो देयर वाज पिग ब्लड ऑन इन इट एंड व्हाइल आज द रीजन फॉर कीपिंग इट, उसने बोला कि यार मुझे ना पाइल्स की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये ट्यूब ना रखनी पड़ती है, रबर ट्यूब मुझे रखनी पड़ती है। ये आंसर दिया किसने? मैक्लेरी ने। बेटा मैक्लेरी जो यहाँ पर आ गया था वो मैक्लेरी असली मैक्लेरी नहीं था। इवांस ने असली मैक्लेरी को अपने फ्लैट से जैसे मैं निकला, घर से निकलते कुछ दूर चलते इवांस के दोस्तों ने मुझे कर लिया किडनैप, राइट। इवांस के दोस्तों ने मुझसे कर लिया किडनैप और उसको अपने घर में मुंह सिर लपेट के बांध के रख दिया, है ना, एकदम गैग अप करके उसको अपने ही फ्लैट में, वो जो ब्रॉड स्ट्रीट पे रहता था बेटा, ब्रॉड स्ट्रीट पे उसको वहीं पर रख लिया, कैद करके रख लिया, राइट। और मैक्लेरी ने बोला कि यार मैं पायल से सफर करता हूँ इसलिए मुझे ये ट्यूब अपने पास रखनी पड़ती है। अब एग्जाम तो बिगिन हो गया, आराम से बिगिन हो गया एग्जाम। अब गवर्नर को बेटा 3 फेक कॉल्स आए, 3 फेक कॉल्स आए। मतलब फेक कॉल समझते हो ना? फेक कॉल को यहाँ पर एक अच्छा सा नाम दिया है, क्या बोला उसको? वैक्स कॉल्स, है ना। फेक कॉल्स को वैक्स कॉल का नाम दिया। तो कभी वैक्स कॉल आ जाए क्वेश्चन में तो आप लोग घबराना मत कि यार ये क्या पूछ लिया, है ना। तो फेक कॉल आई 3। पहली फेक कॉल आती है बेटा, पहली फेक कॉल कहां से आती है? लेट मी टेल यू। पहली फेक कॉल आती है, यस किसी को पता है? यस, आर यू अवेयर अबाउट पहली फेक कॉल्स कहां से आती है? नो? ओके, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। यस, पहली फेक कॉल आती है बच्चा, फर्स्ट फेक कॉल आती है आपके कहां से? हाँ जी, पहली फेक कॉल आती है बेटा जो हमारा बोर्ड सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से आती है कि यार पेपर में ना कुछ करेक्शन कराना है, पेपर में कुछ करेक्शन कराना है बिकॉज पेपर कुछ खराब है ना, पेपर में कुछ गलतियां हैं तो कुछ करेक्शन कराना है, राइट। पहली कॉल वहां से आती है। अब कुछ तो शक होता है गवर्नर को, कुछ तो शक होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है बॉस, क्योंकि यार इतना सस्पिशन होता है उसको। उसने वापस से उस नंबर पे कॉल किया बेटा। ये कॉल आखिर करी किसने थी बेटा? ये कॉल करी थी इवांस के फ्रेंड्स ने। जब उसने गवर्नर ने वापस से वो नंबर को रीडायल करा, है ना, उसने वापस से रीडायल करा तो उसने पता लगा कि वो नंबर अभी बिजी है। उसने कहा यार एग्जामिनेशन बोर्ड का होता है, मैं फालतू में इतनी चिंता कर रहा हूँ, शायद मैं फालतू में ही इतना कंसर्न कर रहा हूँ, इतनी कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा फोन आता है बेटा, अभी तो पहले फोन की बात हुई, अभी आता है दूसरा फोन, ठीक है। लेट्स सी, अभी दूसरा, पहला फोन कहां पर आया था बेटा?
सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड से कुछ करेक्शन है क्वेश्चन पेपर में। दूसरा फोन आता है मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से। कहां से आता है? मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से। वो डिमांड करते हैं कि हमें एक प्रिजन की वैन चाहिए और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए। उसने बोला हमें एक वैन चाहिए और एक प्रिजन ऑफिसर चाहिए बिकॉज देयर इज सम रिमांड केस, एक रिमांड केस है जो कि हमें प्रिजनर को ले जाना है, इसलिए मुझे प्रिजन वैन चाहिए और मुझे साथ में कुछ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए। ठीक है। उसने बोला यार इतना मैंने प्रिपरेशंस करी है, मैं खामखा ही इतना परेशान हो रहा हूँ ना। स्टीफन स्टूड आउट ऑफ द सेल एंड पीप्ड एवरी सेकेंड। उसने कहा कि यार ठीक है, मतलब पीपिंग क्या होता है बेटा? स्टीफन बार बार अंदर झांक के देख रहा था क्योंकि ना पूरा का पूरा डोर तो लॉक था, साथ में एक छोटा सा गेट था प्रिजन ऑफिस वहां पर जो जेल था जहां पर अंदर बैठ के एग्जाम दे रहा था, इतना सा पीप होल था वहां पर, की होल था जिसमें से झांक झांक के स्टीफन अंदर देख रहा था कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। एवरी टाइम जब भी वो देखता था सेम सिचुएशन उसको मिलती थी बेटा। नंबर वन कि यार इवान होता था अपना पेन चबा रहा होता था क्योंकि उसको कुछ आता था नहीं एग्जाम में लिखने के लिए, तो अब वो लिखेगा क्या? कुछ भी नहीं था उसके पास लिखने के लिए, तो ही यूज्ड टू च्यू हिज पेन। और दूसरी बार जब उसने देखा बेटा तो क्या हुआ, इवांस ना अपने आप को एकदम ब्लैंकेट में कवर कर लिया था उसने। ब्लैंकेट बोले तो कंबल, उसको ठंड लग रही थी, है ना। उसने डाउट किया, उसने कहा यार एक ही तो बंदा है एक, और इतना क्या कर लेगा, हमने पूरी चेकिंग भी कर ली। तो उसने उसको ओवरलुक कर दिया, ये सब चीजों को उसने अनदेखा कर दिया। ओवरलुक कर दिया मतलब अनदेखा कर दिया, राइट। सो इट वाज ऑलवेज द सेम, बट लेटर ऑन उसको कुछ ना कुछ डाउट्स हुए बेटा। तो अब देखा क्या हुआ, लेटर ऑन एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड एंड गवर्नर ऑर्डर्ड ऑन द फोन। अब तीसरा फेक कॉल आया बेटा। तीसरा फेक कॉल कहां से आया? गवर्नर की तरफ से आया। किसको? स्टीफन को, कि भैया जाओ और मैकलेरी को गेट तक छोड़ के आ जाओ, है ना, गेट तक छोड़ के आ जाओ। स्टीफन को लगा अरे वाह भाई, मैं तो कल का आया हुआ, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये लोग। तब क्या हुआ, everything went as planned. Stephen was happy and he was sure of himself. उन्होंने कहा वाह स्टीफन वाह, शाबाश मेरे शेर, बहुत अच्छा करा, देखो ये आदमी यहीं का यहीं है बेटा। पर it was Evans who had his last laugh because जैसे जैसे वो उसने अपना कंबल ओढ़ा था बेटा, he was rolling out, he was covering, he was draping himself, he was covering himself with a blanket। तभी अंदर ही अंदर उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसके रूम में जो उसका सेल था वहां पर एक एक्स्ट्रा चर्च ड्रेस थी पड़ी हुई, उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। एंड ही वाज impersonating like that of मैक्लेरी also। एंड उसने मैक्लेरी की तरह बन के चर्च के कपड़े पहन के वो वहां से रफा दफा हो गया, सबकी आंखों में धूल झोंक के, इतनी टाइट सिक्योरिटी में से भी वो निकल गया उनके हाथों में से। एंड ही वाज लाइक फीलिंग कि वाओ आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड। जैसे उसने लॉक खोला उसने कहा देख लेता हूँ एक बार अंदर क्या चल रहा है। उसने देखा कि मैक्लेरी की सीट पे मैक्लेरी बैठे हुए हैं जिनके सर से खून निकल रहा है। सब लोगों ने ये असम्पशन लगा लिया कि इवांस मैक्लेरी को हर्ट करके भाग गए प्रिजन से, है ना। नाउ जस्टी किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं समझा बेटा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ओवरलुक करा छोटी छोटी चीजों को। और उसने कहा कि यार ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कर करके उसने बहुत सारी चीजें ओवरलुक कर दी। और जैसे ही इवांस गेट से बाहर निकला बेटा, एक्चुअली में क्या हुआ था, इट वॉज नॉट मैक्लेरी। सब लोगों को ऐसा लगा। अब यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। सब लोगों को ऐसा लगता है कि इवांस जो है, जैसे कि नॉर्मल सबने सोचा था कि इवांस मैक्लेरी को हिट करेगा और भाग जाएगा, एस्केप कर लेगा प्रिजन से। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, इसके जस्ट ऑपोजिट हुआ था। मैक्लेरी वहीं के मैक्लेरी थे ना, मैक्लेरी बाहर भागे थे इवांस के रूप में, और इवांस मैक्लेरी बन के अंदर बैठ गया था। उसने अपने सर में वो जो आपकी उसकी हाफ वाली सेमी फिल्ड जो ट्यूब थी उसमें ब्लड था ना, उससे अपने सिर पे ब्लड लगा लिया था। एंड वो क्या हुआ था बेटा, वो अंदर बैठ गया था एज मैक्लेरी बन के। और सबने ये मान लिया था कि इवांस ही है जो भाग गया है बाहर, बट इवांस तो सेल के अंदर ही था। रियलिटी में इवांस सेल के अंदर था। इट वाज मैक्लेरी ओनली हु वेंट आउट ऑफ द जेल, राइट। So because he was impersonating like that of McLeary. Now what happened? McLeary who was badly injured, मैक्लेरी जो काफी उसकी चोट वोट लगी थी, उसको गवर्नर ने बोला कि इसको इसको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और बोला कि मैक्लेरी कि यार गवर्नर को फोटोकॉपी के बारे में बताया कि उसको जस्ट भटकाने के लिए उसने फोटोकॉपी के बारे में बताया कि यार फोटोकॉपी देखो उसमें कुछ हिंट है, शायद उसी हिंट से इवांस एस्केप कर गया है, शायद उसी हिंट से इवांस एस्केप कर गया है, राइट। नाउ गवर्नर ट्राई टू डिकोड जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि उसने 6th क्लास तक जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी।
Evans would reach Newberry after his jailbreak and soon Superintendent Carter. अब ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुपरिटेंडेंट कार्टर है, जैसे कि आपने सीआईडी टाइप सीरियल देखे होंगे, उसमें होता है ना दयान, पूरी फोरेंसिक की टीम होती है, तो वैसे ही कुछ ये कार्टर भी थे और ये आए और इन्होंने बताया कि तुम लोग तो बेवकूफ बन गए, he has made a huge out of you, fool out of you, because उसने नकली खून था। पता है ये खून किसका है? ये इंसान का खून नहीं है, ये तो एक पिग का ब्लड है। तब थोड़ा सा समझ में आया, तब गवर्नर ने अपने सर पे ऐसे ऐसे खुजली करी, स्क्रैच हिज हेड। उसने कहा यार ये आदमी तो फिर हमें धोखा देके भाग गया। अब जो कोड लिखा था, सेंटर नंबर और इंडेक्स नंबर, जो कि क्वेश्चन पेपर पे आंसर शीट पे लिखे थे, उससे उसने पता लगवाया कि यार ये जो 313 एंड 616 ये कहाँ का कोड है। तो ये पता लगा उसको कि ये न्यूबेरी का कोड है, और उसने वहां पर थोड़ा सा डिकोड किया, क्योंकि जब उसने क्वेश्चन पेपर पे चेंजेस कराया तो उसने बोला था गोल्डन लॉयन, उसने बोला था द गोल्डन लॉयन होटल की बात करी थी बेटा उसने, और तभी उसने assumption लगाया कि ये तो किसी होटल का नाम है। और तब उसने कोड से पता लगाया कि जैसे हमारा पिन कोड होता है ना, वैसे वहां पर पोस्टल कोड्स होते हैं। तब उसने पता लगाया कि 313 और 612 कहाँ का कोड है, इट वाज ऑफ न्यूबेरी। एंड तब वो वहां पर जाके बैठ गया, और इवांस जो था वो नकली दाढ़ी मूछ बना के, मैकलेरी की तरह बन के इवांस जो था वो जूप करके जा चुका था। स्टीफन और जैक्सन की बहुत सारी डांट लगी, बट अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा जब चीज हमारे हाथ से निकल चुकी है, राइट? सो देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। क्या बोलते हैं कि देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ट मिल्क, है ना? अब क्या फायदा जब चीजें हो चुकी है ना? तो ही देन ऑर्डर्ड बोथ ऑफ देम टू गो टू सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड मीट द चीफ इंस्पेक्टर बेल। उसने कहा जाके बेल से मिलो, शायद उसके दिमाग की कुछ घंटी बजे एंड वो पकड़ पाए। मीनवाइल कार्टर ने बुलाया, उसने बोला कि इवांस वाइल चेजिंग है, हम इवांस को खो दिए, क्योंकि रेड क्लिफ हॉस्पिटल में मैकलेरी को ले जाया गया क्योंकि उसके सर से बहुत सारा खून आ रहा था, बट इट वाज अ नकली खून, इट वाज अ फेक ब्लड, इट वाज ब्लड ऑफ पिग। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, कोई डाउट है बेटा पूछो बेटा फटाफट, एनी डाउट प्लीज आस्क। इज इट क्लियर? Okay, okay. The governor called up the hospital and came to know that they had sent the ambulance. जब एम्बुलेंस भेजी तो पता चला कि वहां से तो मैकलेरी अंकल भाग गए, उड़न छू 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 उड़न छू, वो तो भाग चुके हैं वहां से। तब गवर्नर को सारी की सारी स्टोरी समझ में आई कि इट वाज इवांस ओनली हु एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, और हमने मान लिया था कि वो कौन है, वो मैकलेरी है। He understood the whole plan that McCleary, who was searching for Evans, who helped them searching for Evans, was Evans himself. जो इवांस मतलब मैकलेरी बन के इवांस को ढूंढवा रहा था, वो खुद ही इवांस था, है ना? और soon McCleary was also found by the police, who was tied up at his house. वो अपने ही घर पे बंधा हुआ पड़ा हुआ था, राइट? जैसे कि मैंने बताया था, उसके फ्रेंड्स ने उसको रास्ते में जा रहा था और इवांस के फ्रेंड ने उसे पकड़ लिया था और उसका मुंह से लपेट के अपने ही घर में उसको बांध दिया था, राइट? तो ऑन द अदर हैंड इवान एकदम खुश कि यार मजा आ गया, मैं तो चौथी बार भाग गया, और गोल्डन लायन होटल में वो जाके अपना मजे करके रिलैक्स कर रहा था। जैसे ही उसने डोर खोला तो सामने गवर्नर को पाया। उसने कहा तुम कहां से आए यहाँ पर? तो उसने इवांस ने पूरा का पूरा प्लान बताया कि यार मैंने एस्केप ऐसे 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 किया। उसने पूरी की पूरी स्टोरी सुनाई उसको, एंड फाइनली प्रिजन वैन आई। बेटा कुछ याद आया? ये जो थर्ड कॉल आई थी मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से कि हमें एक प्रिजन वैन चाहिए, हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स चाहिए, ये उसके दोस्तों ने ही फेक कॉल करी थी बेटा, और ये वही प्रिजन वैन थी। गवर्नर को लगा कि वाओ मेरे, मैं तो शाबाश गवर्नर, जाओ मेरे जीते, है ना? मैंने जीते जीते इवांस को पकड़ लिया बेटा। पर फिर से उसने बेवकूफी करी, ही वाज फिर से वो बन गया फूल एकदम से। क्यों? क्योंकि उसने बिना देखे, बिना जांचे, बिना इंस्पेक्ट करे उसने किसी के हाथ में, किसी XYZ प्रिजन ऑफिसर्स के हाथ में इवांस जैसे क्रिटिकल और क्रूशियल क्रिमिनल को दे दिया। और उसने इवांस जैसे ही अंदर बैठा उसके हैंडकफ्स खोल दिए, हैंडकफ्स बोले तो हथकड़ी खोल दी, एंड ड्राइवर से बोला कि जल्दी भाग जाओ ताकि हमें ये लोग पकड़ ना पाए, अगर पकड़ लिया तो बहुत मार लगाएंगे। एंड फाइनली इट वाज इवांस हु हैड हिज लास्ट लाफ, है ना? इट वाज इवांस जो कि एक लास्ट लाफ उसकी बनी, एंड अगेन ही मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पुलिस विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, है ना? दोस्तों की मदद से। कौन कहते हैं फ्रेंड्स बुरे होते हैं? फ्रेंड्स बुरे नहीं होते। देखो इवांस को, देखो इवांस के दोस्तों ने उसकी मदद कराई कि वापस से वो एस्केप कर गया था इतनी टाइट सिक्योरिटी में फ्रॉम द चंगुल ऑफ
from the changul of police. Okay, any doubts to anybody? Are you having any doubts? No. तो आई वांट टू गिव इंट्रोडक्शन टू माय प्लस कोर्स फॉर क्लास 11। मेरे साथ साथ बहुत सारे अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं बेटा आप लोगों को। तो यार वेट किस चीज का कर रहे हो? दिस इज फॉर 12th, दिस इज फॉर 11। ये 7 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बैच। तो बेटा अगर आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ना चाहते हो इतने ही एक्साइटमेंट से, इतने ही मजे से, तो देन डू चेक आउट दी सब्सक्रिप्शन पिचेस दैट इज देयर। आप कितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, है ना, 24 मंथ्स, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 15,000 पर आप जब मेरा कोड लगा लोगे दैट इज KRITS। तो आपको ये पड़ता है कोड, ये कोड लगाने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन पड़ता है 13,500 रुपीज का। इसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, डेली होती हैं क्लासेस, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अनअकैडमी पे। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाते हैं बेटा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF भी मिल जाती है। और साथ में अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पर्सनल मेंटोर एंड लाइव डाउट सॉल्यूशंस वाली जैसी फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। अगर आपको ये फैसिलिटीज चाहिए तो डू चेक आउट दिस एंड एंटर माय कोड दैट इज क्रिट्स to avail this discount, and this will give you a 10% discount on your Unacademy subscription. तो guys, what are you waiting for? जल्दी चलो और अपना सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई शुरू करते हैं। Let's crack it, let's crack your examination, let's crack your fear of examinations, है ना। एग्जाम से ज्यादा डर हमें एग्जाम के नाम से लगता है, ओ एग्जाम लग रहा है ना। तो एग्जाम से डरना नहीं है, एग्जाम को फोड़ के आना है, राइट। तो बेटा आप लोग को पर्सनल मेंटोर मिल जाता है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाते हैं, वीकली टेस्ट रिपोर्ट्स मिलती हैं, जैसे कि आप एकदम आपको ऑफलाइन स्कूल की कमी नहीं खलेगी अनअकैडमी पे, राइट। और आपको साथ में आपको पेरेंट्स से बात करने के लिए भी आपको एजुकेटर का नंबर मिल जाएगा, एंड यू विल कनेक्ट विद योर एजुकेटर, एंड योर पेरेंट्स कैन शेयर द कंसर्न्स एंड दे कैन टॉक टू योर एजुकेटर ऑल्सो। साथ में आपको स्टडी प्लानर मिल जाता है बेटा, और साथ में सारे के सारे बेनिफिट्स प्लस वाले तो आपको मिलते ही हैं। तो आइकॉनिक क्या होता है? एक तीर से दो निशाने, इतना सब कुछ तो मिल रहा है आइकॉनिक में, साथ में प्लस का भी मिल रहा है। So that is why डबल 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 धमाका, है ना। तो अगर आप आइकॉनिक पे पढ़ना चाहते हो तो आपको सेम चीज मिल जाती है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, है ना, अनअकैडमी क्विज एंड लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, लाइव क्विजेस, साथ में आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF मिल जाता है, पर्सनल मेंटोर मिल जाते हैं, और साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है ना। आपको करना कुछ नहीं है बेटा, आपको कोड लगाना है KRITS एंड यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट विच एवर मंथ यू आर फीलिंग कि यार इतने मंथ की तैयारी करनी है। तो आप जितना ज्यादा मंथ चूज करोगे बेटा उतना कम आपको पर मंथ का कॉस्ट पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए आप जा सकते हो, इसके लिए अपना अवेल करने के लिए आपको कोड लगाना है, एंड यू कैन गुड टू गो, यू आर गुड टू गो विद दिस थिंग, है ना। अनअकैडमी पे आप क्विज भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, लॉग इन कर लेना है, अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है बच्चा, मेन्यू बटन पे क्लिक आपको प्लस मेन्यू बटन पे क्लिक करना है, साथ में प्लस सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर आइकॉनिक भी ले सकते हो। आपको बेटा अपने टेस्ट में लेना है, एंड यू कैन ज्वाइन द क्विज एंड यू कैन एंटर द कोड। आप किसी भी कोड, किसी का भी एजुकेटर का कोड लगा सकते हो। यू कैन इवन यूज KRITS and you can just wait for the educator to host the quiz for you and you can start the quiz। अभी नहीं तो कभी नहीं, प्लस और आइकॉनिक का एकदम धमाकेदार ऑफर्स आ चुके हैं बेटा। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है बिल्कुल फ्री, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है क्रिएटिव कॉर्नर का, और साथ में यंग कोडर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलता है। ऐसे ही सेम आपको 18 मंथ्स में आपको 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे, 24 मंथ्स में 2 साल के लिए आपको 6 महीने फ्री मिल जाएंगे, और अगर आप 3 साल 4 साल जितने का भी लेते हो, है ना, वो आपको मिल जाएगा बेटा 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएंगे। साथ में लाइफ टाइम आप सीख सकते हो क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिव कॉर्नर, और साथ में यंग कोडर सब्सक्रिप्शन, है ना। तो ऑफर जल्दी से खत्म होने वाला है बेटा, खत्म होने से पहले ही सोच क्या रहे हो, अभी के अभी ले लो अपना सब्सक्रिप्शन। स्पेशल क्लास मेरी रहती है एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, एंड मंडे को हम लोग पढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स, फ्राइडे को हम लोग पढ़ते हैं NCERT, और है ना वेंसडे को पढ़ते हैं NCERT, और फ्राइडे को करते हैं एकदम पोल वॉर, है ना। पोल वॉर में तो बड़ा ही मजा आता है, लीडर बोर्ड पे अपना नाम देखना नहीं चाहते हो क्या? चाहते हो तो ज्वाइन करो मुझे रात को 10 बजे स्पेशल क्लास में। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो गाइस तुमने कुछ नहीं करा, लाइक फटाफट गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अभी के अभी डाउनलोड करो, और एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड क्रिट्स। And thank you so much. I hope you enjoyed the lecture. Thank you so much for joining.
and see you all. Take care of yourself, है ना, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाना खाइए बेटा, and do not forget, let's crack it guys. If you are new to the channel बेटा, आप इसको bell icon press करिए, and do not forget to like, share and comment on the video, and subscribe to the channel for more such amazing videos on an academy. आपको इस चैनल पे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, है ना, हजार प्रॉब्लम्स है बट एक सोल्यूशन है, दैट इज वन स्टॉप सोल्यूशन इज एन अकेडमी. और लेट्स क्रैक इट गाइस, लेट्स क्रैक इट, क्रैक द फियर ऑफ बोर्ड्स, क्रैक द फियर ऑफ सब्जेक्ट, एंड यहाँ पर एकदम पढ़ाई एकदम इजी हो जाती है, राइट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, दैट इज अन अकेडमी. So what are you waiting for? Join me on an academy. Join my plus classes on an academy. Thank you so much. Have a wonderful evening. Bye bye. Take care and sayonara.